Bismillahirrahmanirrahim. Hi everybody, I'm Zawman Jamali. This is the noon time, 20 past 12 at Sahari. As you know that weather is too hot, Sahari, and it's too hard to work here on that season. I would like to thank my Allah for the bliss that He has granted over me, and I'm really thankful to my viewers for the love and respect that they have shown to us. At the start of my video, I would like to request my viewers to subscribe my channel, share my videos, click the button of liking, put your comments below into the descriptions. As you know that I do not demand any type of material benefit from the side of my viewers, from the side of the candidates for whom I'm working. So you know that I'm teaching free of course. I'm neither asking the students that they attend my center and they learn something from me, but I'm rather working freely and I'm trying to give the things free without any cost. So at the start of my video, the topic I would like to share with my viewers is the voice. Voice. वॉइस कहते हैं आवाज को और and the second thing that I would like to bring in the concept of the students and in the candidates that you know that this is the major chapter in English language that keeps much importance. That's the chapter in English language that keeps much importance from the examination point of view because it can give you 20 marks or it can give you 10 or 20 or 15 marks in your exam if you understand this one well. If you understand this one well, then you can get 20 or 15 marks without any trouble. This is the chapter. So this is the importance of this chapter that I thought, and I was requested to give a lecture on this topic. So I thought that today is the best day because today is the Sunday, and Sunday is a free day. So you know that on this day I am trying to give the lecture on the voice. So at this start, another thing that I would share with my viewers that do not memorize the things. Try to understand the things. Try to bring the things in your concept, and afterwards you can sit in the exam and you can solve the exams well. But if you only memorize the things and you do not understand the things, and you do not ask your teachers that how and what is the voice and where can we make the use of voice and what should be the identification of voice, all these things I will discuss in my topic today. But I request my viewers that watch my video till the end and you can get more and more out of my videos if you are really interested to learn something about the English language. So come to our topic today, you know, as the heat is on. So let's learn about the topic. वॉइस की बेसिक मीनिंग है चेंज. व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ वॉइस? चेंज ऑफ अटेंशन, or focus. Change of focus or attention, focus from one subject to another one. Other. That's the definition of this. This is the change. How does it change work? I'm giving the example, only one example I would like to give here. For example, I teach students
मैं तलबा को पढ़ाता हूँ, मैं तलबा को पढ़ाता हूँ, मैं शागिर्दों को पढ़ाता हूँ, मैं शागिर्दों को सिखाता हूँ, मैं तलबा को पढ़ाता हूँ। तो इधर पे मेरा जो फोकस है, मेरा जो अटेंशन है वो आय पे है, मुझ पे है। तो इसको कहते हैं हम एक्टिव, इसको कहते हैं, इस अटेंशन को हम कहते हैं एक्टिव। एंड सेकंड सेंटेंस यू नोटिस दैट students are taught, students are taught by me। तलबा को सिखाया गया, तलबा को सिखाया गया, मैंने तलबा को सिखाया, तलबा ने कोई चीज़ सीखी, तलबा ने कोई चीज़ पढ़ी और उनको पढ़ाया गया, उनको सिखाया गया मेरी मार्फत। तो इधर पे जो हमारा फोकस था, हमारा जो अटेंशन था आई पे था, आई सब्जेक्ट था, और इधर पे जो हमारा अटेंशन है, जो रिसीवर है हमारे टीचिंग का, वो है स्टूडेंट्स, तलबा। तो देखो दिस चेंज को, ये दोनों जो चेंज हैं, ये दोनों जो चेंज हैं, इन दोनों चेंज को हम वॉइस कहते हैं। इस ऊपर वाली चेंज को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, और इस नीचे वाली चेंज को जो हम कहते हैं पैसिव वॉइस। सो ये दोनों चेंज है, चेंज इन अटेंशन, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, what was the need of this chapter? What was the need of a voice? What was the need of a passive voice? There was an active voice. Then what was the need of a passive voice? अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस था तो पैसिव वॉइस की हमें क्या ज़रूरत पड़ी? जब आपके पास एक्टिव वॉइस था, ऑलरेडी था आपके पास एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस की आपको क्या ज़रूरत आ पड़ी? तो इस ज़रूरत को समझने के लिए फ्रॉम द स्टडी ऑफ many grammatical books, I came to learn one thing is that we make the use of passive voice. Why do we make the use of passive voice? We make use of passive voice when our receiver is important। पहली चीज तो हम एक्टिव वॉइस को हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब रिसीवर इम्पॉर्टेंट होता है। पहली चीज रिसीवर की इम्पॉर्टेंस। और जो दूसरी चीज है वो क्या है? डोर इज अननोन, वन डोर इज अननोन, जब आपको पता नहीं होता कि आपका काम करने वाला कौन है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, वन डोर इज अंडरस्टूड, जब आपको पता होता है कि आपका जो डोर है वो अंडरस्टूड है, आप उसको जानते हो, आप उसको समझते हो, तो भी हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। और फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर हियर, व्हेन एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, एक्शन इज इम्पॉर्टेंट। From the study of different books, from the study of different grammatical books, I understood these things, that when we can make the use of passive voice, when the receiver is important, when the door is unknown, when the door is understood,
when the action is important. अगर आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को सीखेंगे तो आप इंशाल्लाह एग्ज़ाम को सॉल्व कर दोगे। ये जो एग्ज़ाम का हिस्सा होगा, सेक्शन होगा इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन में, तो उसको आप बआसानी से हल कर सकते हैं। पहली, जब आपका रिसीवर इंपॉर्टेंट हो, पहली थिंग देखो, आप जो है पढ़ाते हो, आप कहाँ पे जाके लैंग्वेज पढ़ाते हो या कोई भी टॉपिक आप पढ़ाते हो, तो आप जब जो है ना, आप जब किसी बंदे के सामने जाते हो तो वहाँ पे आप जो है ना, आपका बहस मुबासा होता है, आपकी टॉक होती है, तो आप कहते हो कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आप पढ़ाते क्या हो? इंग्लिश। मेरी वजह से, मेरी मार्फत इंग्लिश सिखाई जाती है। ये नहीं, रिसीवर जब आपका इम्पॉर्टेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब जाते हो तो आप किसी महफिल में बैठते हो तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन होते हैं, तो भाई आप किसको पढ़ाते हो? आप कहोगे कि मैं 8th ग्रेड के स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। मुझसे 8th ग्रेड के स्टूडेंट्स सीखते हैं मेरी मार्फत। 8th ग्रेड के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है मेरी मार्फत, या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है मेरी मार्फत, या आप कहेंगे कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है मेरी मार्फत, या मास्टर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है मेरी मार्फत। और दूसरी चीज़, आप जो है दो बंदे आपस में लड़ते हैं, फाइट करते हैं, तो आपका जो दोस्त है उसको वो ज़ख्मी कर देते हैं। आपका जो दोस्त है उसको वो मार देते हैं। तो आप अगर आते हो आप, तो आप कहते हो कि माय फ्रेंड इज़ beaten और माय फ्रेंड इज़ किल्ड। तो माय फ्रेंड इज़ punished, माय फ्रेंड इज़ beaten, माय फ्रेंड इज़ किल्ड। तो यहाँ पे जो आपका जो ये माय फ्रेंड है वो रिसीवर है, माय फ्रेंड इज़ किल्ड। आपका जो माय फ्रेंड इज़ किल्ड बाय समवन, किसी ने मेरे दोस्त को मारा। माय फ्रेंड जो है रिसीवर है किलिंग का असर किस पे पड़ता है? मेरे दोस्त पे। तो यहाँ पे ये जो रिसीवर इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से यहाँ पे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। अनदर थिंग, मेनी पीपल वर talk about फ्लड प्रोटेक्शन। काफ़ी जो हमारे दोस्त थे, काफ़ी जो लोग थे, उनको फ्लड से बचाव के लिए सिखाया गया, इंस्ट्रक्ट किया गया। तो मेनी पीपल क्या है? रिसीवर है सिखाने के। तो आप कह सकते हो स्टूडेंट्स आर टॉट इंग्लिश। तो इन तीनों सेंटेंस में माय फ्रेंड, मेनी पीपल, स्टूडेंट्स आर द रिसीवर ऑफ समथिंग। सो व्हेन ये जब चीज़ ज़रूरी हो, रिसीवर आपका इम्पॉर्टेंट हो, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करोगे।
और मैंने दूसरा कहा कि जब सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, तब भी आप सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो तब भी आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हो। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स आर बीइंग caught in cheating by invigilator। इनविजिलेटर्स जो थे, सुपरवाइज जो एग्ज़ाम को कर रहे थे, उन्होंने स्टूडेंट्स को पकड़ लिया। तो आप जो है ना, स्टूडेंट्स को कॉपी के दौरान जो पकड़ती है वो टीम पकड़ती है, वो अंडरस्टूड है। तो इसमें इस टाइप के सेंटेंसेस में भी आप क्या कर सकते हो, आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हो। सम robbers are being arrested। तो कुछ चोरों को पुलिस ने पकड़ लिया। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट जो हमारा है कंफर्म है, हमने अंडरस्टूड किया हुआ है कि पुलिस ही हो सकती है। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में हम जो है पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा टाइप जो है जहाँ पे हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं वो है सब्जेक्ट इज अननोन। जब आपका सब्जेक्ट का आपको पता ना हो, जब आपके सब्जेक्ट का आपको पता ही ना हो, तो वहाँ पे भी आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे माई कार इज स्टोलन। माई कार वॉज स्टोलन। मेरी कार को किसी ने चोरी कर लिया, किसी ने मेरी कार को चुरा लिया। माई कार वॉज स्टोलन। तो आप जानते हो कि आपको पता नहीं कि किसने स्टील किया, कि किसने चुराया। तो ऐसे हालत में भी आप जो है पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हो। आप कह सकते हो many things were prohibited in इस्लाम। पता नहीं किसने प्रोहिबिट किया, लेकिन काफ़ी उलमा हो सकते हैं, जब उनकी तादाद का आपको पता ना हो, आपको उनके नाम का पता ना हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस्लाम में ममनू हैं। तो वहाँ पे भी आप, जब आपका सब्जेक्ट अननोन होता है, तो आप वहाँ पे भी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी जगह जहाँ पे आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हो, when action is important, when your action is important, जब आपका काम ज़रूरी हो। चौथी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, जब आपका एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, जब आपका एक्शन इम्पॉर्टेंट हो। मसलन एजुकेशन
एजुकेशन was made compulsory। यहाँ पे एजुकेशन की अहमियत है और किसने कंपलसरी की, किसने जरूरी बनाया, उसकी कोई भी अहमियत नहीं है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है वो आपका एक्शन है, एजुकेशन। announcement in announcement of government houses was made अनाउंसमेंट ऑफ गवर्नमेंट हाउसेस वाज मेड। तो ये जो अनाउंसमेंट है, ऐलान जो है वो ज़रूरी है, एक्शन ज़रूरी है। किसने ऐलान किया, क्यों किया, उसकी कोई अहमियत नहीं। क्यूर ऑफ हेपाटाइटिस, cure of hepatitis was made free for all। जो हेपेटाइटिस का जो इलाज है वो सबके लिए फ्री किया गया है। किसने फ्री किया है, इसकी कोई भी अहमियत नहीं। किसने किया, उसकी अहमियत नहीं। यहाँ पे क्यूअर है, जो क्यूअर है आपका एक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, अनाउंसमेंट इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। तो जब एक्शन इम्पॉर्टेंट हो तो वहाँ पे हम पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। ये तो था यूज ऑफ पैसिव कि इन हालात में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ये सीखेंगे, we will try to understand that what should be the identification of a passive voice. How can we identify passive voice in our sentence? कि हम अपने जुमले में पैसिव वॉइस को कैसे पहचान सकते हैं, कौन सी पहचान होनी चाहिए पैसिव वॉइस की। वॉइस की पहचान क्या होनी चाहिए? What should be the identification of a passive voice? कि भाई किसी भी बंदे की कोई भी चीज़, जब हम किसी भी चीज़ से हम जब मिलना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो कम से कम उसका कॉन्सेप्ट तो हो हमारे माइंड में, हमारे जहन में उसके बारे उसका कोई फिगर तो हो, कोई इमेज तो हो, कोई तस्वीर तो हो कि भाई ये चीज़ ऐसी हो सकती है। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में जानने जाते हैं, जानना चाहते हैं, या किसी बंदे से हम मिलना चाहते हैं, तो कम से कम उस बंदे का फिगर तो हो हमारे माइंड में कि ये बंदा ऐसा होगा, ये चीज़ ऐसी होगी। मिसलन कोई भी अगर कहता है कि मैं सर ज़हूर से मिलना चाहता हूँ, तो उसके जहन में ये चीज़ें हों कि ज़हूर कैसा दिखता है, कहाँ पे रहता है, कैसा होगा, तो ये चीज़ तो हो ना उसके जहन में, तो हो ना, जब जाके वो मिलेगा।
तो ऐसी तरह आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नाउन, सॉरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैसिव। तो पैसिव वॉइस की आइडेंटिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सिंपल सा तरीका। As far as my study concerned with the grammatical books, I will try to present the things in a simple way for the candidates, for the learners, for the students, for the viewers, that they can easily recognize that what should be the structure of passive voice. B plus third form of verb. B plus third form of verb. अब बी के कितने फॉर्म हैं? एक तो हो गया बी खुद। पहला फॉर्म जो बी का था, या बी खुद होगा, या इज होगा, आर होगा, एम होगा, ये हो सकते हैं। और बी का ये जो फर्स्ट फॉर्म है बी का, और बी का जो सेकंड फॉर्म होगा वो क्या हो सकता है? या तो वाज होगा या तो वर होगा। और बी का जो ये थर्ड फॉर्म है, सॉरी वर्ब का जो ये बी का जब बी का फर्स्ट फॉर्म, बी का फर्स्ट फॉर्म, बी का सेकंड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म, बी के फॉर्म बता रहा हूँ। बी का थर्ड फॉर्म जो होगा वो क्या होगा? बिन होगा, एक ही होगा। और बी का जो फोर्थ फॉर्म होगा वो होगा बिंग, बींग। ये इज, एम, आर, वाज, वर, बिन, बींग, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ बी। बी के ये फॉर्म्स होंगे। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म्स क्या हो सकता है? जैसे कि राइट, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। जैसे कि वर्ब का दूसरा फॉर्म क्या हो गया? रोट। और वर्ब का जो तीसरा फॉर्म है ये क्या हो गया? रिटन। तो आपका जो पैसिव है वो कौन सी स्ट्रक्चर आपकी तरफ से डिमांड करता है कि मुझे ये चीज़ें अगर आप फाइंड करो मुझ में, तो आप समझ जाना कि मैं पैसिव वॉइस हूँ। आपका पैसिव वॉइस आपको कहता है कि अगर ये चीज़ें आप मुझ में तलाश करो, ये चीज़ें मुझ में आप देखो, तो आप फौरन समझ जाना कि मैं पैसिव वॉइस हूँ। कौन सी चीज़ें? बी प्लस थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो उसका फॉर्म बी का क्या फॉर्म होगा? इज होगा, आर होगा, एम होगा, वो सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे कहता हूँ आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। तो इसको पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट, चेंज इन फोक्स। At the start of my video, I talked about the change of focus. That's called the voice. At the start of my video, I talked about the change. What is that? This is the change. Change in attention. Change in attention or focus. या तो अटेंशन की चेंज हो या तो फोकस की चेंज हो, इसको आप वॉइस कहते हो। I do my work, my work सिंगुलर है, प्लूरल है। सिंगुलर है तो जो वर्ब इसके साथ अग्रीमेंट करेगा वो भी सिंगुलर होगा। My work is, तो बी का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? इज फर्स्ट फॉर्म है, और सिंगुलर फॉर्म में बी का पहला फॉर्म जो है इज है, तो इसके साथ लगेगा माय वर्क इज। और मैंने कहा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। माय वर्क, डू का थर्ड फॉर्म कौन सा है? जैसे कि डू, डिड,
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, डन। मैं कहता हूँ माय वर्क इज डिड, तो आप इससे गलती निकाल सकते हो। आप कहेंगे कि हमारा पैसिव वॉइस तो ये एजेंटली नहीं लगता। आप कहेंगे जब आप NIC बनाने जाते हो नादरा में, हमारे मुल्क की, जब आप शनाख्ती कार्ड बनाने जाते हो नादरा में, तो आपकी वो जो आइडेंटिटी है, वो आपकी जो आइडेंटिटी होती है, जो आपकी शनाख्त होती है, जो आपकी पहचान होती है, उसके लिए कुछ ना कुछ अलग चीज़ वो दे देते हैं कार्ड पे, जिससे आप पहचाने जाओ। तो ठीक वैसे ही आपके पास आइडेंटिटी है, किसकी? पैसिव की, कि भाई पैसिव में ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आ जाए तो आप इसको गलत कर सकते हो। तो आप फ़ौरन उसको बोलोगे कि भाई पैसिव की ये तो आइडेंटिटी नहीं है, ये तो पहचान नहीं है पैसिव की। तो पैसिव के लिए हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। तो डू का थर्ड फॉर्म क्या है? डन। माय वर्क इज डन बाय मी। बाय मी आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, इट्स ऑप्शनल एंड इट डिपेंड्स ऑन यू। In other sentence, she writes. These are active. She writes a letter. Sorry. A letter is written. So same way, many more examples I can give here. और मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि आप फैक्ट से ही टेंसेस बना सकते हो। मैंने कल बताया था अपने व्लॉग में एट द स्टोर पे कि आप वर्ब से ही टेंस को पहचान सकते हो। मैंने बताया था कि वर्ब से ही आप टेंस को पहचान सकते हो। अगर वर्ब इज इन फर्स्ट फॉर्म, देन योर टेंस शुड बी सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। इफ योर वर्ब इज इन सेकंड फॉर्म, then your tense will be in past simple. If your verb is in third form, then your tense will be perfect simple. If your verb is in the fourth form, then your tense should be continuous. Either the present perfect continuous or the present perfect continuous, or the present continuous or the future perfect continuous, or the future continuous, or the past continuous or past perfect continuous. So like that you say, I am playing cricket. मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। क्रिकेट इसको पैसिव करने के लिए क्रिकेट इज, मैंने कहा बी का सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे कंटिन्यूस है तो बी का फॉर्म भी कंटिन्यूस का फॉर्म होगा, फोर्थ फॉर्म लगेगा। कौन सा फॉर्म? ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? फोर्थ। येस्टरडे मैंने सिखाया था कल कि प्लेइंग जो है, प्ले, प्लेस, प्ले फॉर द प्रेजेंट सिंपल, प्ले प्लूरल, एंड प्लेस इज ए प्रेजेंट सिंपल फॉर द सिंगुलर, एंड प्लेड सेकंड फॉर्म पास्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट सिंपल, प्लेड थर्ड फॉर्म as the perfect. So here you need playing ka is being played by me. तो आगे चलते हैं हम। कोई और, ये हो गया कंटिन्यूस के सारे टेंसेस ऐसे ही होंगे। कंटिन्यूस के जितने भी आएंगे, आएंगी फॉर्म वाले वर्ब जितने भी आएंगे, उनका पैसिव आप अगर प्रेजेंट का है तो इज बीइंग, अगर पास्ट का है तो वाज बीइंग,
वर बीइंग वो तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर फ्यूचर का विल भी इसके बाद नहीं होगा क्योंकि बी आ जाता है ऑलरेडी, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। बी का फॉर्म अगर ऑलरेडी आ जाता है तो वहाँ पे पैसिव नहीं होगा। और फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव होगा बिन से। जैसे कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट का देता हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली है। क्रिकेट हैज़ सिंगुलर है इसलिए हैज़ आएगा, हैज़ बिन। बी का फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म बिन प्लेड बाय मी। अब आप कहोगे कि ये बी बिन क्यों लगाते हैं भाई, ये आप इस क्यों लगाते हो, आप जो है बीइंग क्यों लगाते हो भाई। हम वर्ब से एग्रीमेंट करते हैं। अगर आपका वर्ब देखो प्ले होगा तो इसके साथ बी का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो बी का भी फर्स्ट फॉर्म होगा, अगर वर्ब आपका सेकंड फॉर्म में है, प्लेड है, तो बी का भी सेकंड फॉर्म क्या होगा, वाज होगा या वर होगा, सेकंड फॉर्म होगा। नोटिस दिस थिंग, ये तो सब्जेक्ट से डिपेंड करेगा प्लूरल है कि सिंगुलर है। अगर वर्ब आपका फोर्थ फॉर्म में है, प्लेइंग में है, तो वहां पे आपका होगा बीइंग। आईएनजी वाले जितने भी वर्ड होंगे, जैसे भी होंगे, उनको किसमें तब्दील करोगे, बीइंग में। और मैंने कहा कि अगर आपका वर्ब थर्ड फॉर्म में है, जैसे कि आप कहते हो प्लेड, तो यहाँ पे बी का जो अग्रीमेंट होगा इसके साथ वो होगा बिन में, क्योंकि बिन थर्ड फॉर्म ऑफ बी। सो दिस थिंग को आपको नोटिस करना है और सारी चीज़ें ऐसे ही होंगी, सिंपल है, कोई मसला नहीं है, रटाफिकेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सारे इनके पैसिव वॉइस ऐसे हो गए। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03013523 715। सो आप ऐसे काफ़ी सारे जुमले बना सकते हो, सिर्फ वर्ब को चेंज करना होता है। अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगाओगे, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाओगे। और कल या परसों मैं आऊँगा तो दूसरा जो मैं व्लॉग्स बनाऊँगा तो उसमें मैं वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट के बारे में पढ़ाऊँगा कुछ। तो ये ऐसे होगा परफेक्ट का। अगर आपका पास आता है पास्ट, आई डिड माई वर्क, तो आप जानो ये यहाँ पे लेके आओगे माई वर्क इज ए सिंगुलर। और बी का फर्स्ट सेकंड फॉर्म क्या होता है, बी का सेकंड फॉर्म या तो वाज होता है या तो वर होता है। वर्क सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, वाज डन। और इसका वर्ब का क्या फॉर्म होगा, किसमें चेंज होगा, थर्ड फॉर्म में, माई वर्क वाज डन बाय मी। तो ऐसे ही सारे जुमले बनेंगे। और अगर आपका कंटिन्यूस फॉर्म है, I was doing my work. My work was doing किसमें चेंज होगा, being में। My work was being done by me.
अगर देते हो तो भी सही है, नहीं देते हो कोई मसला नहीं, मैं बताऊंगा कि कहाँ पे देना चाहिए कहाँ पे नहीं। तो ये पास का ऐसे होगा, और अगर आपका पास परफेक्ट आ जाता है, जैसे कि आई हैड, सॉरी माय पेन हैज स्टॉप राइटिंग, आई हैड डन माय वर्क, आई हैव डन माय वर्क, माय वर्क हैड, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या है, बिन है तो बिन लगेगा, हैड बिन डन बाय मी। तो उसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होगा। इन चार चीज़ों के पैसिव वॉइस नहीं होंगे। उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस नहीं होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस नहीं होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस नहीं होंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस नहीं होंगे। इन तीनों के चारों के पैसिव वॉइस नहीं होंगे। बाकी सबके आप कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। शी विल डू हर जॉब, तो पैसिव करने के लिए हर जॉब विल बी, मैंने कहा था कि बी का फॉर्म बी भी आ सकता है, बी डन बाय हर। तो इसके सारे जुमले ऐसे ही होंगे। आई विल हैव परफेक्ट होगा इसका ऐसे, आई विल हैव डन माय जॉब, मैंने अपना काम कर लिया होगा, माय जॉब विल हैव बीन डन बाय मी। तो इस टाइप के सारे जो पैसिव हैं ऐसे ही बनेंगे। और कुछ पैसिव रहते हैं जो मैं कल के विदाउट्स में क्लियर करता चलूँगा, और जो वो कल मैं परसों जो विदाउट्स में बनाऊँगा तो उसमें सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा। और जिसको भी भाई को या बहन को कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई भी क्वेश्चन करना हो, तो वो कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है अबाउट द पैसिव एक्टिव व्हाटसोएवर। एंड ये हो गए सिंपल पैसिव एक्टिव्स। और कल मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी थी, वो जो कंटिन्यूस फॉर्म था उसको भी मैं अभी क्लियर करता चलूँगा। वो कल मैंने क्या छोड़ा था, मैंने स्ट्रक्चर छोड़ी थी कि भाई टेंस की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, वो भी इसमें मैं थोड़ी सी ऐड करता चलूँगा। क्योंकि कल किसी बंदे ने पूछा कि सर आपने स्ट्रक्चर जो है पूरी नहीं बताई, तो मैं उसको पूरी बताऊँगा। तो यहाँ पे है पास्ट
पास्ट कह सकते हो, पेस्ट भी कह सकते हो। पेस्ट सिंपल, पेस्ट कंटिन्यूअस, पेस्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पेस्ट परफेक्ट, पेस्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी होगी स्ट्रक्चर आई डिड इट, डिड आई डू इट, सवालिया। नेगेटिव आई, सॉरी, आई डिड नॉट डू इट, शी डिड हर जॉब, डिड शी डू हर जॉब, सवालिया। शी डिड नॉट डू हर जॉब। कंटिन्यूस का आई वॉज प्लेइंग इन दी ग्राउंड, मैं ग्राउंड में खेल रहा था। इसका इंटरोगेटिव होगा वाज आई प्लेइंग इन दी ग्राउंड, क्वेश्चन मार्क होगी। आई वाज नॉट, नेगेटिव होगा आई वाज नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, ग्राउंड। इसका परफेक्ट होगा आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली थी। हैड आई प्लेड क्रिकेट, आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। कंटिन्यूस का आई हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट, हैड आई बिन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैड नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट। तो ऐसे काफ़ी सारे जुमले आप बना सकते हो। अब आता है फ्यूचर। फ्यूचर की स्ट्रक्चर क्या होगी? ये कल इसलिए रह गए थे क्योंकि मेरी वोट जो है वो पावर ऑफ हो गई थी, तो कुछ इशू हो गए थे। इस वजह से मैं जो है ये कंप्लीट अपलोड नहीं कर पाया, तो इस वजह से मैं बकाया चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। जैसे कि फ्यूचर का आई विल डू इट। कुछ लोग शल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शल का यूज़ जो है काफ़ी जो है ज़रूरी नहीं है। आप विल का इस्तेमाल कर सकते हो। विल आई डू इट, आई विल नॉट डू इट, आई विल बी doing it, will I be doing it। Interrogative है I will not be doing it, I will have done it, will I have done it, I
So, I will not have done it. She will have been doing it. Will she have been doing it? She will not have been doing it. So many more sentences you can form like this. So with that, I would get permission from your side, and I would end my video here. And I would like to request once again to my viewers to subscribe my channel, click the button of liking, share my videos, put your comments below to the description so that I know that whether my videos are serving your purposes or not. And tomorrow, inshallah, we'll meet again. So until then, come with me. Goodbye.